بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے قومی معلومات کے ساتھ میں ہوں اسامہ اعجاز۔ لاہور ہائی کورٹ نے اتوار کے روز لاہور شہر میں کمرشل سرگرمیوں پر مکمل پابندی عائد کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کے خلاف درخواستوں پر سماعت لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے کی۔ عدالتی حکم پر ڈپٹی کمشنر لاہور موسیٰ رضا نے مارکیٹوں کی 10 بجے بندش کا نوٹیفیکیشن پیش کیا اور بتایا ریسٹورنٹس کو بھی رات 10 بجے بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ جسٹس شاہد کریم کا کہنا تھا مقصد نوٹیفیکیشن نکالنا نہیں بلکہ اس پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے۔ پابندی لگانے کا مقصد اسموگ کا تدارک کرنا ہے۔ ماحول میں آلودگی بڑھنے سے اسموگ بھی بڑھ رہی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے اتوار کے روز لاہور میں کمرشل سرگرمیوں پر مکمل پابندی عائد کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا شادی ہالوں کی رات 10 بجے پابندی پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے۔ 27ویں آئینی ترمیمی بل 7 نومبر کو سینٹ میں پیش کیا جائے گا، جس کا جائزہ سینٹ اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیاں لے گی۔ ذرائع کے مطابق بل آئندہ ہفتے منظور ہونے کا امکان ہے۔ مجوزہ ترمیم میں آرٹیکل 243 کے تحت آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کے عہدے کا آئینی درجہ دینا، آئینی عدالتوں کا قیام، ایگزیکٹو اختیارات کی ضلعی سطح پر تقسیم اور ملک بھر میں یکساں نصاب شامل ہے۔ لاہور میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید کی زیر صدارت تبدیلی تفتیش فرسٹ بورڈ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں لاہور کے تمام ڈویژنل ایس پیز نے شرکت کی۔ اجلاس میں قتل، اقدام قتل، اغوا، چوری، دھوکہ دہی سمیت 32 مقدمہ زیر بحث آئے، جبکہ فریقین کو سننے کے بعد تفتیش کی تبدیلی کے احکامات جاری کیے گئے۔ ایس ایس پی محمد نوید نے کہا شہریوں کو میرٹ پر فوری انصاف کی فراہمی ہماری ترجیح ہے۔ خواتین بچوں سے متعلق مقدمات ہنگامی بنیادوں پر نپٹائے جا رہے ہیں اور اختیارات سے تجاوز کرنے والے افسران کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ بہاڑی کے معروف علاقے میں جدید سہولیات سے آراستہ ڈینٹل اینڈ امپلانٹ کلینک کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں سابق ایم این اے طاہر اقبال چودھری سمیت معزز شخصیات نے شرکت کی۔ کلینک کے سربراہ ڈینٹل سرجن ڈاکٹر علی ارسلان نے کہا مقصد عوام کو عالمی معیار کے دندان سازی امپلانٹ کی سہولت فراہم کرنا ہے تاکہ مریضوں کو بڑے شہروں کا رخ نہ کرنا پڑے۔ شہریوں نے کلینک کے قیام کو صحت کے شعبے میں خوش آئند قدم قرار دیا۔ حاصل پور میں بچوں سے بدفعلی کے مقدمے میں ملوث عادی مجرم پولیس کے تعاقب کے دوران فائرنگ کی کوشش میں خود زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے پسٹل نکالتے وقت گولی اپنے جسم پر چلا لی، جس کے بعد اسے زخمی حالت میں گرفتار کر کے ٹی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ خوشاب کے علاقے قائد آباد میں 8 سالہ عدنان کے اغوا اور نہر میں پھینکے جانے کے بعد ریسکیو 1122 کا دوسرے روز بھی سرچ آپریشن جاری ہے۔ ڈسٹرکٹ انچارج ملک محمد شکیل کی نگرانی میں سکوبا، لائن اور بوٹ سرچ میتھڈ کے ذریعے بچے کی تلاش کی جا رہی ہے، تاہم تاحال لاش برآمد نہیں ہوئی۔ شکر گڑھ میں 47 سالہ امین پر سسرالیوں کے مبینہ تشدد کا واقعہ۔ متاثرہ شخص کے مطابق اسے گھر بلا کر گلے میں آہنی تار ڈال کر الیکٹرک استری سے جلایا گیا۔ واقعے کی درخواست اور میڈیکل رپورٹ تھانہ نور کوٹ میں جمع کرا دی گئی ہے۔ پولیس نے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ بھائی وڈا انہوں نے اپنے گھر بلایا فون کر کے سالے صاحب انہوں نے پھر وہ نہ کی زیادتی انہوں نے موقع ہی نہیں انہوں ملیا کہ وہ جڑا نا گھر پہنچدیا ساری جڑا نا دروازہ لاک کر لیا۔ 2 دیاں سالیاں تے 2 سالے تے ایک جڑا نا اتوں کا باگڑیاں مقام کا مڑا۔ یہاں 3 تے 2 بڑھیاں 5 جنے وہ ظلم کیا، زیادتی کی، گلے میں رسی پان لی نفس جڑا نا کٹن کی کوشش کی ہے۔ ساہیوال میں ڈی پی او محمد عثمان ٹیپو کی زیر صدارت کرائم میٹنگ میں ایس پیز، ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز نے شرکت کی۔ ڈی پی او نے ہدایت دی قبضہ مافیا، رہزنوں، مویشی چوروں، مجرمان اشتہاری کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے، غیر قانونی افغان شہریوں کو پناہ دینے والوں پر کریک ڈاؤن کیا جائے اور تفتیش میں انصاف شفافیت یقینی بنائی جائے تاکہ کوئی بے گناہ سزا اور گنہگار بری نہ ہو۔ ڈپٹی کمشنر جنگ علی اکبر بنڈر کی زیر نگرانی سپورٹس ڈپارٹمنٹ جنگ کے زیر انتظام انٹر سکولز گیمز کا افتتاح کر دیا گیا، جس میں مختلف کھیلوں کے مقابلہ جات بوائز اینڈ گرلز ٹیموں کے درمیان ہو رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جنگ سے عمران گل سے۔ جی عمران گل، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، کمشنر فیصل آباد کی ہدایات پر جو ڈپٹی کمشنر جنگ ہے ان کی زیر نگرانی سپورٹ ڈپارٹمنٹ جنگ کے زیر انتظام انٹر سکولز گیم 2025 کا آج باقاعدہ افتتاح ہو چکا ہے، جس میں باسکٹ بال، فٹ بال، ہاکی اور اس کے ساتھ ساتھ آرچری کے مقابلہ جات کا انعقاد کروایا جائے گا۔ مزید ہمارے ساتھ ڈپٹی کمشنر جنگ موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں۔ جی سر بتائیے۔ مجھے میرے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے، اگر میرا بس چلے تو میں بھی شاید ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دوں، لیکن کیونکہ انہوں نے مجھے خصوصی طور پہ بلایا ہے تو یہ جو ہمارا 4 دن پہ معاہدہ ہے جو صرف ایتھلیٹکس، فٹ بال، آرچری اور آپ کا یہ ہو رہا ہے دوسرا
बास्केट बॉल के हो रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पूरे माह के जो प्लान्स हमने दिए हैं उसमें हमारे जितने भी पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स हैं वो भी हैं और पब्लिक और प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। तो ये पहले हमारी तहसील लेवल पे कंपटीशन होंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी इंशाल्लाह जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा वो टीम्स भी निकलेंगी। और जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, ये मैं टीचर्स को भी कहता हूँ, पेरेंट्स को भी कहता हूँ कि ये बच्चे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी स्पेशली स्पोर्ट्स में आएंगे खुद भी तंदुरुस्त होंगे। जितनी भी आप देखते हैं कि मीडिया का दौर है, ये सोशल मीडिया का है, ज़्यादा जो हमारी जो यंग जनरेशन है वो आपको पता ही है कि ज़्यादा ये प्रोन टू अब हो गया, मोबाइल हो गया है। ये स्पोर्ट्स के इवेंट्स जो इनको साल में एक दफ़ा नहीं होना चाहिए, तकरीबन ये डेली बेसिस पे इनका एक टाइम होना चाहिए स्कूल्स के अंदर भी और कॉलेजेस के अंदर भी। और मैं जब मीटिंग करता हूँ हफ्ते में 2 दफ़ा, तो मैं इनको कहता हूँ जितना आप पढ़ाई पे फोकस करते हैं उतना बच्चों की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी फोकस होना चाहिए। जितने भी हमारे बच्चे आए हैं, हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, वो इनको माशाल्लाह पूरी सरपरस्ती भी कर रहा है और इनको सर्टिफिकेट भी देंगे, शील्ड्स भी देंगे और इंशाल्लाह इनको इनामात भी देंगे। जो बच्चे इंशाल्लाह हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के होंगे उनके आगे जाकर डिवीजनल लेवल पे जो हमारी कंपटीशन होंगे और फिर जो पंजाब लेवल पे होंगे उनमें हमारी वो नुमाइंदगी भी करेंगे, इंशाल्लाह जीत के भी आएंगे। जी, जैसा कि डिप्टी कमिश्नर जंग तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, उनका कहना था ये गेम्स बड़ी खुश आइन है, इनको मुतवातर के साथ होते रहना चाहिए ताकि जो है कि इन ग्राउंड के अंदर से जो हमारा टैलेंट है उभर के सामने आ सके। जी, शाहबाद में बस्ती मलोक पुलिस चौकी लाड़की की अनोखी कार्रवाई ने शहरियों को हैरान कर दिया। पुलिस ने मुल्जिमान के साथ नन्हे बच्चों को भी हिरासत में ले लिया। बच्चों के मामू ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस ने बिला वजह मासूम बच्चों को साथ बिठा लिया जिनका किसी जुर्म से कोई ताल्लुक नहीं। बच्चे के मामू शहरियों ने CPO मुल्तान से फौरी नोटिस लेते हुए एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब इंस्पेक्टर आरिफ का कहना है बच्चे मौके पर मौजूद थे जिन्हें बाद अज़ां गुलिस्तान के हवाले कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का विजन सड़कें बहाल। पंजाब खुशहाल प्रोग्राम के तहत सूबाई वज़ीर तामीरात और मवासलात मलिक सुहेब अहमद ने चनियोट का दौरा किया। सूबाई वज़ीर ने कमालपुर इंटरचेंज तक तहसील चौक चनियोट तक तामीराती काम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर चनियोट सफीउल्लाह गोंदल CNW के अफसरान ने सूबाई वज़ीर को ब्रीफिंग दी। 24 किलोमीटर 2 रोया सड़क पर 19 किलोमीटर अर्थ वर्क का काम मुकम्मल हो चुका है। 19 किलोमीटर सब बेस और 18 किलोमीटर बेस कोर्स का काम मुकम्मल कर लिया गया। 12 किलोमीटर रोड पर स्पॉट बचा दी गई है। सूबाई वजीर ने तामीराती काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हदायत की। उन्होंने फैसलाबाद बाईपास से चनियोट बाईपास तक सड़क दिसंबर 2025 तक मुकम्मल करने की हदायत की। सूबाई वजीर ने कंसल्टेंट स्टाफ को टेस्टिंग रिकॉर्ड मुरतब करने की हदायत की। सूबाई वजीर को चनियोट तक सरगोदा रोड के लिए लैंड एक्वायर करने के प्रोसेस पर ब्रीफिंग दी गई। मंडी अहमदाबाद में चेयरपर्सन अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट और साबिक MNA रुबीना शहीन वट्टू ने अटारी दरिया सतलुज के मुकाम पर सैलाब ज़दगान के 300 से ज़ायद खानदानों में राशन, खैमे, कंबल, मच्छरदानी और मिनरल वाटर तकसीम किया। रुबीना शहीन वट्टू ने कहा अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट हमेशा मुश्किलात में घिरे खानदानों की मदद में पेश रहा है। ये इमदादी सरगर्मियाँ सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए जारी हैं। तकरीबन 300 घरानों का ज़बरदस्त राशन पैकेज मोहतरमा रुबीना शहीन वट्टू साहबा चेयरपर्सन अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से आज मंडी अहमदाबाद में तकसीम किया जा रहा है। और जब कभी भी नागहानी कुदरती आफत आई है तो चेयरपर्सन अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट मोहतरमा रुबीना शहीन वट्टू साहबा और उनकी पूरी टीम हमा वक्त खिदमत खलक में कोशा नज़र आए हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ये नहीं कि मामूली सा राशन पैकेज होता है बल्कि एक बड़ा अच्छा और लॉन्ग टर्म जो है वो देर पर चलने वाला राशन पैकेज होता है। आप तो देख सकते हैं इसमें कि इस राशन पैकेज में एक कंबल है, मच्छरदानी है, नेस्ले की बोतल है और तकरीबन 50 किलोग्राम वज़नी ये राशन है जिसमें घी, चावल और उसके अलावा दालें हैं, मतलब हर किस्म की ज़रूरियात ज़िंदगी इसमें मौजूद हैं। अल्लाह ताला मोहतरमा रुबीना शहीन वट्टू साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए कि इन्होंने हमेशा अमली काम पे यकीन किया है, ना कि जो है वो मतलब बातों के दावे नहीं किए बल्कि अमली काम करके दिखाया है। तवील खुश्क साली के बाद मनसहरा गिरदोनवाब में घर चमक के साथ मूसलाधार बारिशों, वादी कागान नरान के पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। झील सैफुल मलोक, बट्टा कुंडी, बाबूसर टॉप पर बर्फबारी से सियाहों की बड़ी तादाद नरान का रुख कर रही है, जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है।
रहीम यार खान में MNA सरदार अजहर खान लगारी की ज़िले-सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी ब्राइट डेवलपमेंट का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सियासी रहनुमाओं मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि ज़िले में 40 अरब रुपए की लागत से 121 तरक्याती मनसूबा का काम जारी है, जिनमें 69 सालाना तरक्याती प्रोग्राम, 65 सड़कों की बहाली की स्कीमें शामिल हैं। तमाम मनसूबे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन का हिस्सा हैं। कोट मिट्ठन के नवाही इलाके में गैरत के नाम पर शादीशुदा 3 बच्चों की मां को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया। स्पेशल टीवी की टीम मकतूला के गरीब मजलूम मुतासरा खानदान के पास पहुंच गई। मुतासरीन का क्या कहना है, इसी पर मजीद बात करेंगे मोहम्मद अफजल फरीदी से। जी अफजल, अपडेट कीजिएगा। अजी बिल्कुल, कोट मिशन के नवाई इलाका कच्चा ब्रिक रख्तोंग में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर गुज़श्ता रोज इंसानियत सोज अफसोसनाक वाक़या देखने में आया है कि शक की बिना पर जो है नौजवान की नाक काट दी गई है और उसी शक की बिना पर 8 माह की हामला खातून को जो है बेदर्दी से मुबैना तौर पर कत्ल करके दरिया में बहा दिया गया है। पुलिस की जानिब से अब तक क्या कार्रवाई की गई है, पुलिस की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और मुतासरा खानदान जो है मकतूला का मुतासरा खानदान वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मकतूला की बूढ़ी वालदा मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे। अम्मा, क्या कहेंगे, पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई? आपकी बच्ची को बेदर्दी से कत्ल किया, अभी तक लाश भी मिली है कि नहीं? नहीं अम्मी नहीं भाई, है ससुराल मारी फ्रेंड भाई माई हेल्प करे मेरे नाल वजीर आला मरियम नवाज जी भी मेरे नाल ही करे, हेल्प करे मेरे को अपनी लाश मेरी वापस कर दो मेरी फर्म। कुछ मुल्जिमान भी तुम्हारे हैं गिरफ्तार राय बंदे क्या पुलिस क्या दी है तुम्हारी बच्ची की लाश जी है उनको गोलन वास्ते तलाश करने वास्ते क्या करेगी? कोई छड़ा तरसला देनी है, कोई कार्रवाई नहीं है। कई जादी का है मेरी लाश वापस करा देना ना भैया, मेरे नाल इमदाद करो ना, मेरे नाल भला करो ना, मेरी कोई ऐसे यार ही नहीं थे। अच्छा बिल्कुल, इनकी मकतूला बच्ची की हाल ना ही लाश बरामद की गई है और ना ही हस्ब ज़ाब्ता जो है कानूनी कार्रवाई देखने में आई है और ना ही मुकदमा दर्ज किया गया है। इस बुरी वालदा ने IG पंजाब, वज़ीर आला पंजाब और पुलिस के दीगर सिक्योरिटी इदारों से यही अपील किया गया है कि इसकी मकतूला बच्ची की लाश बरामद की जाए और मुल्जिमान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कोट अद्दू में मेहनत, लगन और खिदमत का जज्बा रखने वाले काबिल अफसरान ने कोट अद्दू के तरक्याती सफर में अहम किरदार अदा किया। तहसील से जिला बनने तक के मरहले में दरपेश मसाइल के बावजूद इंतजामिया की मौसर क़यादत ने आवाम को हर फोरम पर इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई और कोट अद्दू को तरक्की खुशहाली की राह पर गामजन किया। मज़ीद देखें इस रिपोर्ट में। जनूबी पंजाब के दिल में तारीख का एक नया बाब रकम हुआ। तहसील कोट अद्दू बरसों के इंतजार के बाद बिलाखिर जिला बन गया। ये सिर्फ एक इंतजामी ऐलान नहीं था, ये एक ख्वाब की ताबीर थी, एक जद्दोजहद का नतीजा। अवाम के चेहरों पर खुशी थी, मगर साथ ही एक सवाल भी कि क्या ये नया जिला वाकई उनकी जिंदगियों में तब्दीली लाएगा। इसी वक्त एक नाम सामने आया, डिप्टी कमिश्नर सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी। एक ऐसा अफसर जो सिर्फ ओहदे से नहीं किरदार से पहचाना जाता है, जिसने कागजों पर नहीं मैदान में रहकर काम किया। महदूद फंड्स, कलील वसाइल मगर अज़्म मजबूत। कोट अद्दू को एक फाल जिला बनाने का सफर उन्होंने खुद अपने हाथों से शुरू किया। बुखारी साहब ने ऐदा संभालते ही फैसला किया कि अवाम की दहलीज पर इंसाफ पहुंचाया जाए। रेवेन्यू अदालतों में फौरी सुनवाई के निजाम को बेहतर बनाया। जमीन से मुतल्लिक तनाज़ात के केसेस खुद मॉनिटर किए। हर हफ्ते खुली कचहरियां लगाईं, जहां आम शहरी बिला झिझक अपने मसाइल बयान करते और डिप्टी कमिश्नर मौका पर ही फैसला सादिर करते। यही वो तर्ज हुक्मरानी थी जिसने अवाम के दिल जीत लिए। अवामी फलाह सिर्फ फैसलों से नहीं, मौजूदगी से आती है। इसीलिए सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी ने सरप्राइज विजिट्स का सिलसिला शुरू किया। क्या मसला है? आपको चेक करवा लिया कि नहीं? कोट अद्दू में सफाई सुथराई के लिए सुथरा पंजाब प्रोग्राम की खुद निगरानी की। इन दौरों और निगरानी की वजह से न सिर्फ इदारों में खौफ और जिम्मेदारी पैदा की, बल्कि अवाम को यकीन दिलाया कि उनका मुहाफिज जाग रहा है। बुखारी साहब जानते थे कि तरक्की का पहला जीना अमन है। इसीलिए उन्होंने कोट अद्दू में एक मजबूत अमन कमेटी कायम की, जिसमें मजहबी रहनुमाओं, समाजी कारकुनों, ताजिरों और शहरी नुमाइंदों को शामिल किया गया।
ये कमेटी न सिर्फ फिरकावाराना हमाहंगी के लिए काम करती है, बल्कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में इंतजामिया के साथ शाना बशाना खड़ी रहती है। बुखारी साहब खुद इन इजलासों की सदारत करते हैं, अवामी नुमाइंदों के साथ बैठकर ये पैगाम देते हैं कि ये शहर हम सब का है, इसका सुकून हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। अमन कमेटी के काम ने शहर में भाईचारा और एतमाद को मजबूत किया, मगर तरक्की के सफर में मुश्किलात भी आईं। जब गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ और हाईवे अराजी वागुजार कराई गई, तो बरसों से काबिज ताकतें बिगड़ गईं। जीटी रोड को 110 फुट तक कुशादा करने का मंसूबा अवाम के लिए नेमत, मगर माफिया के लिए मुसीबत बन गया। यही वो लम्हा था जब प्रोपेगेंडे का तूफान उठा। अखबारी माफिया और खुद साख्ता शहरी तंजीमें रोज नए बयानिए घड़ने लगी, मगर तारीख गवाह है कि सच वक्ती तौर पर दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी का मकसद जाती शोहरत नहीं, अवामी फलाह है। उन्होंने लगारी चौक में गर्ल्स कॉलेज और कोटा सिटी में फ्लाईओवर और हेडूसा बिराज पर टूरिज्म पार्क जैसे मंसूबे दोबारा शुरू करवाए, जो फाइलों में दबते चले जा रहे थे। नौजवानों के लिए अदबी महफिल पार्क टी हाउस कायम की गई, ताकि तालीम याफ्ता नस्ल सोच, अदब और सकाफत से जुड़ी रहे। अवामी तफरी के लिए जीप रैली फेस्टिवल और स्टेडियम इवेंट्स का आगाज किया गया। ये तमाम इक़दाम कोटअदू के अवाम के लिए एक पैगाम है कि तरक्की सिर्फ सड़कों की नहीं, सोच की भी होती है। आज कोटअदू में रोशनी है, उम्मीद है और एक नया यकीन कि जब क़यादत दयानतदार हो तो तब्दीली नागुज़ेर बन जाती है। सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी सिर्फ एक डिप्टी कमिश्नर नहीं, बल्कि एक निजाम को जगाने वाले हैं। वो मर्द मुजाहिद जिसने माफिया के शोर में इंसाफ की सदा बुलंद रखी। आज कोटअदू फख्र से कहता है, ये है हमारा मुहाफिज, हमारा हीरो। शनियोट में शहरियों को दहलीज पर सहूलियात की फराहमी के लिए मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट जिला भर में फ़ाल है, जो FIR, इंदराज, ड्राइविंग लाइसेंस, दीगर खिदमात फराहम कर रहा है। यूनिफाइड लॉ कॉलेज में आगाही सेशन के दौरान तलबा ने इस इक़दाम को सराहा और कहा कि जदीद खतूत पर इस्तवार पुलिस वर्क अवामी सहूलत और वक्त की बचत का मौसर जरिया है। यूनिफाइड लॉ कॉलेज चनियोट के अंदर आज हमारे साथ मौजूद हैं सब इंस्पेक्टर सैयद अली रज़ा शाह साहब। आज जिन्होंने यूनिफाइड लॉ कॉलेज के अंदर जो एक सेमिनार का इनेकाद किया है और जो पुलिस वैन जहाँ पर आई है और स्टूडेंट्स को फैकल्टीज़ जो है वो प्रोवाइड की गई, इस हवाले से इसका काइंडली ब्रीफ कीजिएगा। जी, एज़ पर डायरेक्शन ऑफ CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की डायरेक्शन पे जो एक मोबाइल लाइसेंसिंग और मोबाइल जो है पुलिस स्टेशन वो हम डोर स्टेप पे फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जनरल पब्लिक को और स्पेशली तौर पर स्टूडेंट्स को। तो उसी सिलसिले में आज हम यूनिफाइड लॉ कॉलेज में आए हुए हैं। यहाँ पे हम एट द स्पॉट जो है वो लोगों के लाइसेंस जो है वो भी इशू कर रहे हैं, जिसमें चाहे मोटरसाइकिल की कैटेगरी हो, कार की कैटेगरी हो, या उसके अलावा कोई लाइसेंस रीन्यू करवाना है या इंटरनेशनल लाइसेंस जो है किसी ने अगर प्रोसेस करवाना है। ये सारी फैसिलिटीज़ एट डोर स्टेप एंड विद इन नो टाइम जो है एज़ पर डायरेक्शन एंड एज़ पर विजन ऑफ CM पंजाब जो है वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ये पूरे चनियोट के अंदर जो है वो चीज़ें चलेंगी और जो एक ऑब्जेक्टिव है कि हमने ये फैसिलिटीज़ डोर स्टेप पे देनी है, इंशाल्लाह वो हमारा मिशन जो है पूरे चनियोट के अंदर जारी रहेगा। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी, ये CM पंजाब मरियम साहिबा का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिसके अंदर डोर स्टेप पे कॉलेजेस के अंदर वुमेंस होती हैं जो क्या नाम है हरासमेंट का शिकार होती हैं, पुलिस स्टेशन जाने से डरती हैं, उनके लिए CM पंजाब का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिसमें वो डोर स्टेप पे उनकी जो है वो कंप्लेंट्स भी फाइल करेंगे, उनके लाइसेंस बनाने में भी इंशाल्लाह उनको जो है सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अब्दुर्रहमान सियाल फ्रॉम चनियोट। हैदराबाद में SSP अदील हुसैन चांडियों की निगरानी में बगैर नंबर प्लेट और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ थानों और ट्रैफिक पॉइंट्स पर सख्त चेकिंग की गई। 19 गाड़ियां तहवील में ले ली गईं, 5 गाड़ियां ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 550 के तहत जब्त और एक FIR दर्ज करके एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। हलानी में कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार पोल्ट्री फार्म का मजदूर जहां बख्त जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। जहां बख्त मजदूर का ताल्लुक आरिफ वाला से बताया गया। जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद गंबट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार करके गाड़ी तहवील में ले ली। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।